शेख बट फाइनली मतलब ये पर्पज़ ना हुआ इनिशियली तो आई बिकेम इन्वॉल्व विद दिस medical practice. So general surgery also, but I used to always tend to do those things which are plastic. We could do at Kaiser many plastic surgery cases without full training. Finally, I met another surgeon from here, who motivated me and also helped me. So then I went to George Washington Hospital in Washington DC, and वहाँ जाके 2 years मैंने fellowship किया, वो from 79 to 81. And after completion of that, then I left Kaiser, and then I'm in private practice here in Cleveland since 82 onwards. I'm here, as a plastic surgeon. So आपने choose किया to become a plastic surgeon. हाँ जी. It is your passion, or you want to make more money? No, it's absolute passion, really. You would not believe I do a lot of charitable work here and abroad. A lot of patients whom the other doctors don't want, कहते हैं कि पैसे नहीं है. I really do it free, even here. I see. Even to that, I have been a Rotarian also, and also I have been a Army Reserve officer for 6 years. I was major when I retired in 1978. So there is a city clinic here. They call it McCafferty Health Center. So myself and another professor of surgery, he's present professor of surgery at Case Western Reserve University, Dr. Pansky, we are very close friends. तो हमने आर्मी वालों को कहा कि please, instead of wasting our time at the armory, we would like to have a free clinic where we could do minor surgery. So हमने वो all throughout that was our help to the city of Cleveland actually. And then I have been going throughout to Pakistan, to King Edward Medical College, contributing towards all those causes which I think they're very dear to me, to help. I owe to Pakistan actually that they made me, believe it or not, and for many of my other friends and classmates, they gave us free education. जिसके it is in ये भूल जाते हैं वैसे लोग, कुछ डॉक्टर हजरात भूल गए ये. It's in दौलत it's in really खनक ने और झनकार ने उनको पाकिस्तान की यादें बुला दी हैं. बिल्कुल मैंने नहीं अभी तक नहीं बुलाई. मैं बल्कि उसी दिन से every time I go from the same time, I generally have been traveling like two times a year at least. And I took my children also, Usman, Omar, so that they should know their roots. We should never forget our roots. That country made me what I am. Without their help, I would be really, honestly speaking, nothing. या डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर जब कहते हैं ना प्लास्टिक सर्जन, हाँ जी, एकदम भी आता है कि प्लास्टिक सर्जरी इज ओनली फॉर द फेस. हाँ जी, कि जी फेस लिफ्टिंग, नोज को शार्प करना, स्ट्रेट करना, चिन सही करना, और नेक के नीचे गोश्त होता है उसको सही करना, भवें सही करना, आयल, ये सब चीज़ों को दूर करके मेक ब्यूटीफुल. ओके, बट आई थिंक द प्लास्टिक सर्जरी बियॉन्ड दैट. वुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? Well, there are two sides to plastic surgery. Plastic surgery is plastic, which means cosmetic surgery, and the other part is reconstructive surgery. तो ये जो मैं आपका नोज़ की रिकन्स्ट्रक्शन, ये तो बिल्कुल ही it is purely of reconstructive nature. तो as a matter of fact, ये जो मैं ऑपरेशन बताता हूँ जो कि हम वहाँ किया करते थे, that has been done historically in India before Christ. There was a family over there in India. वो कुम्हार होते हैं ना, उनकी को family थी. They used to make noses because these cut noses have been there for a long time. Long time, yeah. एक सिलोन में और कहते हैं नाक काट लूँगा मैं. नाक श्रीलंका में, बल्कि ये भी हिस्ट्री है कि जब वो शहर ख़त्म होता था तो वो नया जब बादशाह आया उसने पुराने सारों के नाक कटवा दिए. देयर इज़ ए सिटी इन श्रीलंका जिसका नाम है नक्कटा सिटी. तो ये तो
तो इनकी रिकन्स्ट्रक्शन हैज़ बिन गोइंग ऑन विद फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन इन एन इंडियन फैमिली फॉर जनरेशन्स। वो एक दफ़ा की स्टोरी है हमारी हिस्ट्री, प्लास्टिक सर्जरी की हिस्ट्री की किताब में, कि वो एक अंग्रेज़ था, वो आर्मी में था वो, तो हमारा अपना नहीं, हमारा अपना सोल्जर था इंडिया का, तो वो कपरू उसका नाम है शायद। तो वो गया अपने सार्जेंट के पास, कहता है कि मैंने अपना नाक बनवाना है, ये कटा हुआ है, उसका कटा हुआ नाक था। तो वो कहता है कहाँ जा रहे हो? गांव में जा रहा हूँ। तो कहता है वाकई वो ठीक होगा, कर देंगे। तो कहता है चलो तुम्हें छुट्टी दे देते हैं। वो 3 हफ्ते के बाद आया, उसका नाक बना हुआ था। इट्स लाइक ए फ्लैप ऑपरेशन विच दीज पॉटर्स दे यूज्ड टू डू, देयर फैमिली। तो फिर उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, वो 18th सेंचुरी में उसमें आर्टिकल है इस चीज़ का सारा, कि वो एक बंदा गया, उसका नाक शाक सब उन्होंने दिखाया हुआ है। सो द हिस्ट्री गोश्त से बनाते थे वो पता स्किन है, से? वो है ना फॉरहेड, जो हमारे फॉरहेड से एक फ्लैप वो कर लेते हैं, उसको करके, यानी कि एक वर्टिकल फ्लैप, उसको नीचे ला के जोड़ दिया गोश्त को, फिर बालों के साथ जोड़ देते थे। हॉर्स के जो होते हैं ना, हाँ, उनके हॉर्स की टेल के वो बाल ज़रा सख्त होते हैं, उससे वो सुई धागे से जोड़ दिया। और फिर वो जब वो ब्लड सप्लाई वो ले लेता है, फिर वो दोबारा ऊपर से काट के फिर वो वापस ले गए। इसको कहते हैं फॉरहेड फ्लैप और इंडियन फ्लैप। This is what operation which by the way, this operation is still being done the same way. अच्छा, अभी आप मेरी वो बात का जवाब नहीं पहुंचा। हाँ जी। कि सर्जरी बियॉन्ड द फेस, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी एक तो बॉडी की भी सर्जरी हम करते हैं ना, और एक तो कॉस्मेटिक सर्जरी में तो वी डू breast surgery and abdominal surgery like tummy tucks and liposuctions and all that. Also the non-surgical part iska bhi hai, which means, you know, like for example we do Botox and Juvederm and some of this. Generally we get the helps of aestheticians, and I happen to have a very good aesthetician with me. टीना उसका नाम है। तो वो वी रियली, तो वी इंटरफर ईच अदर, उसका भी अपना, सो टुगेदर वी डू दैट। ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट और एंटायरली डिफरेंट पार्ट है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। अब मेरे पास हर वक्त ही जाना, आई एम अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द सर्जरीज। डॉग बाइट इज़ ए वेरी कॉमन ऑन द फेस, के गुड बिट ऑफ गोश्त इज गॉन, यू नो, तो हम वो ठीक करते हैं। तो इस तरह और बड़ा कट, even as far as last night, you remember कि I went and I did a lip, a piece of the lip was missing, I just advanced and did it in. I see. So so trauma की भी सर्जरी करते हैं for the face and for the rest of the body also, जहाँ burns, what about the burns? हाँ जी, body burns. हाँ जी, बॉडी बर्न्स। बॉडी बर्न का जो इनिशियल केयर है वो तो मैं नहीं अपनी प्रैक्टिस में करता, हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में वो करते हैं। लेकिन रिकन्स्ट्रक्टिव उसका जो आता है वो है, फॉर एग्जांपल ये जो है बर्न कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, उनमें हाथ नहीं हिलते। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ऑन वन ऑफ दीज ट्रिप्स टू रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में मुझे एक उन्होंने हमारे केस दिया कि एक आदमी था, उसके 2 हाथ नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्चर दोनों तरफ से हो चुका था। ही कुड नॉट ईट, ही कुड नॉट क्लीन हिमसेल्फ। So by releasing the contracture over the elbow and putting a skin graft, we gave him this movement so that he could clean himself. And at the second visit फिर हम गए, फिर हम उसका दूसरा हाथ भी किया. So sometimes this can be a very extremely difficult problems. As you know, ये क्लीवलैंड में एक्सीडेंट केसेस करते हाँ, एक्सीडेंट केसेस भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, क्लीवलैंड हैपन टू बी, एज आई टोल्ड यू, यहाँ एक हिस्ट्री ये है कि यहाँ एक at Cleveland Clinic recently there have been a very big story of facial transplant, and हमारा एक पाकिस्तान के एक ENT सर्जन है who was part of that team who was responsible for that complete facial reconstruction. Or complete, what do you mean by complete transplant? Complete from dead body, face a significant, like both cheeks, nose, lips, वो सारा वो ला के उस पर लगाया उन्होंने, एंड इट्स वर्किंग, यू नो। वो द लेडी इज फ्रॉम हियर, फ्रॉम द सिटी, एंड वो यानी कि उसके लिए जो बहुत ही इसका फेस तबाह हो गया होगा। बिल्कुल तबाह हो गया। हमारे में समटाइम वो, मैं हिना के साथ हम वो शो देखते हैं ना, उसमें वो एक लेडी 1-2 को लाती थी, यूज्ड टू ब्रिंग,
तो मुझे हमेशा मेरे दिल में होता था मैं इसको यहाँ किसी तरह क्लीवलैंड में लेके आऊँ और इन डॉक्टर को, डॉक्टर पेपेज वहाँ है, ही इज़ द चीफ ऑफ सो जो